ओके, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रोल है वो सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन का रोल यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन करने वाला है, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो रोल है वो हमको यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता हुआ दिखाई देगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको हम बोल देंगे। एंड इन दैट केस द टाइम, ऑब्वियसली टाइम तो टाइम ही है, नो डाउट। So obviously first kinematic equation can be written to be like this: omega is equal to, so omega is going to be equal to omega naught plus alpha t. This is called as the first kinematical equation, where omega naught is the initial angular velocity and alpha is the angular acceleration and t is going to be the time. The second kinematic equation can be written, अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको ही हमको सिर्फ मॉडिफाई करना है। s के बदले हमको रिप्लेस करना है थीटा, नो डाउट। Then here this u is going to be replaced by omega naught, so it becomes theta is equal to omega naught into t plus, यहाँ पे a को जो है हमको अल्फा से एक्सप्रेस करना है, रिप्लेस करना है, so that it becomes half into alpha into t square। ये हो गया सेकेंड कैरेमेटिक इक्वेशन। और थर्ड कैरेमेटिक इक्वेशन में भी हमको वही चेंजेस करने हैं। v is going to be replaced by omega, so that we get this omega square, which is equal to u is going to be replaced by omega naught, so that we get this as omega naught square plus, here alpha is going to be replaced by a is replaced by alpha and s is replaced by theta, so that we get this omega naught square plus 2 alpha theta as the third kinematic equation। and along with this ये जो चौथा वाला kinematic equation है उसको भी हम convert कर सकते हैं in rotational motion, that is going to be theta is equal to omega naught plus omega upon 2, that is called as the average angular velocity, that is to be multiplied by time, which gives us the angular displacement. So these are the four kinematic equations. This is the first kinematic equation, second, third and fourth. These four kinematic equations are to be used in case of when the angular acceleration is going to be constant। तो जब भी angular acceleration constant होता है तो उस केस में हमको ये चारों kinematic equations यूज करने हैं। तो omega first kinematic equation can be used to find out the final angular velocity if we know the initial one and alpha and time also। And the second kinematic equation can be used to find out the angular displacement or number of rotations also। And this third kinematic equation can be found out to find out the angular velocity after time t or after some time where angular displacement is given। तो अगर angular displacement यहाँ पे दिया हुआ है तो उस केस में हम angular velocity निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सब चीजों के लिए हमको ये यूज करने हैं। तो जिसमें यहाँ पे कि ओके, सो हम देख सकते हैं तो हमारा जो एग्जांपल चल रहा था देखिए यहाँ पे तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि फैन इज रोटेटिंग एट 90 rpm, it is switched off, it stops after 21 revolutions। Calculate the time taken by it to stop assuming that the frictional torque is constant। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी 90 rpm, जिसको हम निकाल सकते हैं। इसको यूज करके हम ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉरी इसको पहले हम आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 आरपीएम का मतलब होता है 90 डिवाइडेड बाय 60 हर्ट्ज। जैसा कि अभी बताया कि उनको 60 से डिवाइड करके उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे 30 से तो 32 जा and 33 जा, so that we get this 3/2 which is going to be 1.5 रेडियन पर revolutions per second। तो ये हमारा मिल गया इनिशियल फ्रीक्वेंसी।
चलो ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट, तो ओमेगा नॉट जो है वो हमको मिल जाएगा 2 पाई एन नॉट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो ये हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गया 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। और अभी जैसे हम लोग बोला है कि इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रोटेशंस। तो अभी यहाँ पे देखो रोटेशंस, एक बार जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम जानते हैं 2 पाई हुआ करता है। तो इसीलिए जब वो नंबर ऑफ एन टाइम्स जब रोटेट करेगा तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो एक्चुअली 2 पाई इंटू एन के बराबर हुआ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये जो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन ये फॉर्मूला जो यूज किया है वो उसी की वजह से किया है। तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई इंटू 21 दैट मीन्स 45 पाई, दिस बिकम्स एक्चुअली द angular displacement in that time, and omega is going to be 0, final angular velocity is going to be 0 because the fan stops after that, and using the kinematic equation। तो अगर हम kinematic equation यूज करेंगे यहाँ पे तो हम देख पाएंगे, अगर फर्स्ट kinematic equation हम यूज करते हैं जो कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, तो ये अगर यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 0 माइनस 3 पाई डिवाइड बाय टी जो कि टाइम, लेकिन टाइम ही हमको निकालना है। तो वन थिंग वी कैन डू, वी कैन यूज द फोर्थ kinematic इक्वेशन एज वी हैव जस्ट सीन। तो अगर हम अभी अभी जो हमने यूज किया तो जो हमारा फोर्थ kinematic इक्वेशन है वो अगर हम यूज करेंगे तभी भी हमको ये सेम आंसर मिल जाएगा। देखिए ठीक से, फोर्थ kinematic इक्वेशन क्या हमने अभी बताया था कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2, मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये अगर हम यूज करेंगे तो थीटा हम यहाँ पे हमको पता है ऑलरेडी 42 पाई है। तो अगर यहाँ पे हम उसको डाल दिया 42 पाई इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, तो ओमेगा नॉट तो यहाँ पे हमको दिया है 3 पाई है, 3 पाई, तो वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो ये बन जाएगा 3 पाई प्लस ओमेगा तो 0 है एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज टाइम इज टू बी फाउंड आउट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा टाइम t इज इक्वल टू, ये 2 अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 84 टाइम्स पाई दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस 3 पाई। तो अगर ये 3 पाई से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको ये पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा एंड 3 2 जा एंड 3 8 जा, so that we get this as t is equal to 28 seconds as it is as a final। तो ये भी हम कर सकते हैं आराम से। तो फोर्थ kinematic इक्वेशन भी अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, नो डाउट। नेक्स्ट इज अबाउट, देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो हमको अच्छी तरह समझना है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, विल सी, जस्ट विल सी द पीपीटी। Okay, so just see the examples of centripetal force. Here are the examples of centripetal force as you can see on the screen। सबसे पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता ही क्या है, समझो ठीक से कि the force which acts on the bodies which is directed along the radius and away from the center is called as a centripetal force, centrifugal force, sorry। तो अभी सपोज एक बॉडी अगर घूम रहा है, देखिए यहाँ पे अगर एक बॉडी इस तरह से घूमता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो इसके ऊपर हम जानते हैं कि एक जैसे फोर्स जो है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है एंड दिस फोर्स एक्चुअली इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके जो एग्जांपल्स है हम ये सब एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं आराम से। सबसे पहला एग्जांपल है उसका सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग जो कि केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज किया जाता है। इसको अगर हम सपोज रोटेट करते हैं तो ये सब जो कंटेनर्स है वो हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक पॉइंट पे जमा हो जाते हैं। The next example of centrifugal force you can see about, this is the another example of centrifugal force when the
दिस टाइप ऑफ मेरी गो राउंड रिवॉल्व्स, तो अगर इस टाइप का जो मेरी गो राउंड है वो जब रिवॉल्व होता है तो हम देख पाते हैं आराम से कि जो हर एक जो चेयर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और इसका जो रीजन है वो यही है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन along the radius away from the center, and that's why all these chairs just thrown out in outward direction. दूसरा उसका एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये जो वॉशिंग मशीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो कपड़े होते हैं वो जब हम स्पिनर के अंदर डालते हैं और उसको जब हाई स्पीड में हम घुमाते हैं तो जरूर ये सभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनके ऊपर एक मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होता है और उसकी वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स दूर दूर फेंके जाते हैं जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल से, एंड so these are the examples of centrifugal force. Now we'll talk about तो अभी हम ये बात करेंगे इट्स अबाउट द, देखिए अभी अभी हमने ये देखा अभी ये देखा कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सपोज ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर हमेशा दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। एक फोर्स जो काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, which is going to be the force which is directed along the radius and towards the center. This force is actually called as centripetal force, you can say, and centripetal force is given by mv square upon r. ये उसका फॉर्मूला है। ये centripetal force is given by the formula mv square upon r. एक तो ये फॉर्मूला उसका है और दूसरा उसका फॉर्मूला ये भी है m r omega square, where m is the mass of the particle which is revolving here, and r is the radius of this circle, and omega is the angular velocity of this revolution, or v is the linear velocity, v is the tangential velocity, ये इसको बोल सकते हैं हम। तो centripetal force के ये दोनों फॉर्मूले हैं, और centripetal force is the force acting on the particle which is revolving in a circle which is acting along the radius towards the center. उसके एग्जांपल्स क्या है तो हम देख सकते हैं आराम से। सपोज एक पार्टिकल जो है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस तरह से, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर प्लैनेट्स जो सन के आसपास घूमते हैं, ये सपोज सेंटर में जो मान लो सन है और ये प्लैनेट जो है वो इस तरफ घूम रहा है, तो what is the force which is required for this planet to keep in orbit, circular orbit? That is the centripetal force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करता है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, अभी हमने बोला था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला either v omega, or it can be also written as r omega square, or it can also be given by v square upon r, no doubt. तो ये जो फॉर्मूले है तो इससे हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाता है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कैन से दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू m इंटू वी ओमेगा। एक तो ये फॉर्मूला उसका होगा, दूसरा यहाँ पे भी इसको हम अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा इसको भी अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे वाले को तो हमको ये मिल जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये तीन फॉर्मूले जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं आराम से। और इवन अगर सपोज एक स्ट्रिंग अगर लेके अगर हम कोई पत्थर घुमाते हैं, अगर रिवॉल्व करते हैं, तभी भी हम समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर का जो टेंशन है वो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम कर रहा है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है। बिकॉज यू कैन से दैट यूजिंग द स्ट्रिंग वी ऑलवेज स्ट्रेच और पुल द स्टोन टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमेशा सेंटर की तरफ हम इसको खींचते रहते हैं, और इसीलिए ये जो फोर्स है जो टुवर्ड्स सेंटर काम करता है इसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। एट द सेम टाइम
if we consider the example of the nucleus and electron, suppose electron जो है suppose एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस वी नो दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस के बारे में हमको पता है पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हमेशा होता है, ये सपोज न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हियर, एंड सिंस दे आर हैविंग द चार्जेस they are having the force, attractive force between them। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनके बीच में होता है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसकी वजह से ही जब भी वो घूमता है तो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हुआ रहता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड negatively charged electron acts as a centripetal force in this case। So all these are the examples of centripetal force, we can say। But the centrifugal force is the force which is acting on the particle which is revolving in circular motion, which is directed along the radius and away from the center in this case। ये जो सेंटर से दूर काम करने वाला जो फोर्स है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज एक्चुअली ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जैसा कि mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर के डायरेक्शन में काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी व्हीकल या कोई भी जो कर्व रोड पे अगर कोई व्हीकल टर्न ले रहा है तो उसके अंदर जो बैठा हुआ पैसेंजर होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड mr ओमेगा स्क्वायर एंड व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर at every point। And already we have seen a large number of examples of this centrifugal force। So this centripetal force and centrifugal force, these are the two basic forces in the circular motion। सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये काम करते हैं, लेकिन इसमें हमको और एक अच्छी तरह से बात समझनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये रियल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स as we can say, but the centrifugal force is not a real force। Centrifugal force is a imaginary, or we can say pseudo force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है it's going to be a pseudo force, you can say, or it is not a real force but it's a imaginary force because it arises from the acceleration of the frame of reference। Basically when we consider a particle in circular motion, we'll see that suppose ये जो circular motion के अंदर जो घूमने वाला particle है उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। तो अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस तरह से अगर कंसीडर करेंगे, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हुआ हर एक पार्टिकल जो है वो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इस फ्रेम का एक्सेलरेशन इनवर्ड्स है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज इनवर्ड्स एंड दैट्स व्हाई द centrifugal force or pseudo force acting on it is going to be the outwards, and that's why this centrifugal force is not a real force but it's a pseudo force। It's an imaginary force which is to be assumed, whose existence is to be assumed in order to explain the Newton's laws in order to in the circular motion। तो circular motion के अंदर जो सभी laws है वो explain करने के लिए हमको pseudo force की जरूरत पड़ती है, वही centrifugal force कहलाता है। So we have seen if we see the textbook again, so we have seen the concepts of centripetal force and centrifugal force। Here the direction of centripetal force is towards the center of the circle and that's why it is taken as negative। तो उसका जो डायरेक्शन है वो r बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये यहाँ पे उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये माइनस साइन जो आता है वो इसीलिए है क्योंकि the centripetal force is always directed towards the center which is opposite to the radius vector which is along the radius away from the center। तो r बार का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनवर्ड्स होता है, इसलिए वो माइनस साइन वहां पे आ जाता है। ये हमको समझना है।
Okay, so now we have to see the dynamics of this uniform circular motion. तो सर्कुलर मोशन के जो डायनामिक्स है उसके अंदर अलग अलग एग्जांपल्स हमको देखने हैं. सबसे पहले हमको हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर जो कोई भी व्हीकल जब ट्रैवल करता है तो उसका एनालिसिस करना है. उसके बाद हमको जो वेल ऑफ डेथ, जिसको मौत का कुआं भी कहा जाता है, उसके बारे में एनालिसिस करना है. और उसके बाद हमको व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, तो बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है और बैंक रोड पे किस तरह से हम व्हीकल का सेफ्टी स्पीड निकाल सकते हैं, तो ये सब हमको देखना है. और उसके बाद फिर हमको कोनिकल पेंडुलम का भी कंसेप्ट देखना है, उसका भी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल के दिखाना है, which are the important topics in this chapter. तो यहाँ तक हमको आज करना है. देखो ये ठीक से, ये सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा कोनिकल पेंडुलम, और उसके बाद उसके पहले हमको ये करना है बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग एंड इसका एनालिसिस. और उससे पहले हमको ये देखना है मौत का कुआं, जो कि वेल ऑफ डेथ भी कहलाता है. और उसके पहले हमको ये देखना है द हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड. हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे कोई भी व्हीकल का जो सेफ्टी स्पीड है वो कितना रहता है, तो वो हमको समझना है. लेकिन ये सब समझने के लिए हमको एक बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. जैसा कि देखो यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड विथ फ्रिक्शनल फोर्स. जैसा कि हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. तो एक बार फिर से हम 2 मिनट में रिवाइज करेंगे. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन. स्पेसिफिकली इफ सपोज देयर इज अ सरफेस, कोई भी एक सरफेस अगर समझो हमारे पास है, और इस सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी रखा हुआ है इस तरह से, ये सपोज एक बॉडी रखा हुआ है, तो इस बॉडी को जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज वी अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन, सपोज इस डायरेक्शन में अगर हम सपोज कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से ये बॉडी मोशन में आ सकता है, मूव हो सकता है. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं देयर इज अ ऑपोजिशन ग्रांटेड बाय दिस सरफेस. तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इन सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ऑपोजिशन होता है, वही इस बॉडी को स्लाइड नहीं होने देता. And we can understand that हेलो, हाँ हाँ, गुड इवनिंग. हाँ सर, बाद में कॉल करेंगे, मेरे लेक्चर में होता है. ओके ओके. Okay, so basically whenever the body is experiences some force F, जिसको हम applied force बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि तुरंत ही ये बॉडी मोशन में नहीं आता है. देयर इज सम फोर्स which is acting in between the two surfaces which are in contact, which opposes the relative motion, and that force only is called as frictional force. तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता है. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है. एंड वी कैन से इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग दिस अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स को अगर हम सपोज थोड़ा बढ़ा देंगे, जैसे हम ये फोर्स को बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स also increases its own magnitude as we increase the magnitude of applied force. लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि जब ये बॉडी जस्ट स्लाइड करने के लिए स्टार्ट करता है और मोशन में आ जाता है, एंड दैट मैक्सिमम फोर्स up to which the body can remain at rest is called as the limiting force of static friction. It is always denoted by Fs. Remember, limiting force of static friction. What is limiting force of static friction? Is the maximum force up to which the body can be at rest. बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स जरूरी है वो कहलाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड इट कैन बी प्रूव्ड दैट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. जो फर्स्ट लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो यही कहता है
कि अब अगर सपोज कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो अगर सरफेस पे अगर रखा हुआ है जिसका वेट अगर सपोज mg है, और at the same time the surface will also be exerting some normal reaction on the body in the upward direction. ये जो सरफेस जो है वो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है क्योंकि वो ऑपोजिट और इक्वल है। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेल्स अस दैट द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज Fs is always directly proportional to the normal reaction of surfaces in contact, and the constant of proportionality between these two is just simply mu s into n, where mu s is called as the coefficient of static friction, which depends on the roughness of the surface, and therefore we can get this as a law, first law of static friction. When n is equal to mg होता है, ये जो हमको पता है ऑलरेडी, तो n जो है वो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है यहाँ पे जो ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, इट इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द व्हीकल हियर और weight of the body here, and that's why we can say that n is going to be equal to mg, and that's why we can say that the limiting force of static friction in this case will be equal to mu times मतलब mu s times mg in this way here. So this is going to be the actually formula for limiting force of static friction between the two surfaces in contact, and this is the maximum force up to which the body can be at rest. If the applied force is applied force, ये जो applied force यहाँ पे हम apply कर रहे हैं वो अगर less than Fs है, अगर वो Fs से छोटा है, तो उसका मतलब जो body है the body will be at rest, the body will remain at rest, no doubt. But if this applied force, ये जो applied force body के ऊपर काम कर रहा है वो अगर Fs से ज्यादा है, जैसा कि अगर वो Fs का मतलब है तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उससे अगर ज्यादा है, एक्सीड करता है, तो ऐसे केस में जो बॉडी है इट विल बी इन मोशन. तो रिमेंबर करेक्टली दैट व्हेनेवर द फ्रिक्शनल फोर्स, whenever the applied force is less than frictional force, the body remains at rest. But whenever the applied force exceeds the frictional force, the body comes in motion. तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है. So this is the property of frictional force, and these are the laws of friction. And दो laws और भी है. तो second law क्या कहता है हमको पता ऑलरेडी, वो तो इतना यहाँ पे important नहीं है कि the limiting force of static friction is independent of area, doesn't depend on area. मतलब एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, कितना भी एरिया हो तो भी लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा. अगर एरिया बढ़ेगा या तो फिर कम भी होगा तभी भी लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट चेंज. एंड दिस Fs एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस, depends on the nature of the surface and material of the surface. तो nature and material इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे. तो nature and material मैटर करता है, मतलब सरफेस जो है वो स्मूथ है या रफ है या गर्म है या ठंडा है, वेट है या ड्राई है, ये सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उस सरफेस का कितना होगा. So this is the basic concept which we have to study in the about the friction. तो ये फ्रिक्शन के बारे में हमने ये जो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है वही हमने एक बार रिवाइज किया इस सेक्शन में. अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई व्हीकल मान लो कि कर्व्ड मोशन अगर परफॉर्म करता है, suppose there is a vehicle and suppose it moves along the curved road like this. देखो यहाँ पे ये व्हीकल अगर सपोज है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी व्हीकल इस तरह से अगर मूव कर रहा है, कर्व अगर ले रहा है, टर्न अगर ले रहा है, तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि कौन सा फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है. विच इज द फोर्स विच इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑन द व्हीकल. तो अभी देखिए हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो व्हीकल का जो ये है, व्हीकल का खुद का जो ड्राइविंग फोर्स है, इंजन का जो फोर्स है
वो तो सामने की तरफ काम कर रहा है, हम ये समझ सकते हैं इस तरफ काम कर रहा है, और ये जो दूसरी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, नो डाउट। लेकिन ये दोनों तो चलो बैलेंस्ड है, क्योंकि व्हीकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, नो डाउट। एट द सेम टाइम और एक फोर्स इस व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि जब ये व्हीकल टर्न करता है तो अगर ये रोड जो है वो अगर बहुत स्मूथ होता, if this road would be smooth, very smooth, then the vehicle would have been slided. तो ये व्हीकल जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड होना चाहिए था, ये डायरेक्शन में ये व्हीकल जो है वो स्लाइड होना चाहिए था। किसकी वजह से? तो हम ये समझ सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर जो काम कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से ये व्हीकल इस तरफ स्लाइड करना चाहिए था, स्किड होना चाहिए था। लेकिन ये रोड के रफनेस के कारण, ये रोड का जो सरफेस है वो उतना रफ है, और उसकी वजह से ही ये जो व्हीकल है वो स्लाइड नहीं हो पाता। इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इस व्हीकल के ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए और एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस तरफ काम कर रहा है, जो कि इस रोड के कर्वेचर के सेंटर की तरफ है। यहाँ पे किधर तो भी रोड का कर्वेचर का सेंटर रहा होगा, इस सर्कल का, जिस सर्कल का ये रोड पार्ट है उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे किधर तो भी रहा होगा, और इस सेंटर की तरफ ये फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। और इसलिए हम ये देख सकते हैं कि ऑलवेज व्हेनेवर अ बॉडी टेक्स अ टर्न और व्हीकल टेक्स अ टर्न, यू कैन सी दैट frictional force acts on that vehicle in the inward direction, in a direction which is along the radius towards the center, and that force actually the frictional force. तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जैसा काम कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अगर होता ही नहीं, अगर वो रोड बहुत स्मूथ होता, तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स दिस व्हीकल विल नॉट बी परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। ये व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं था, बल्कि ये व्हीकल जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता और स्लाइड होता था इस डायरेक्शन में, जबकि वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ही जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि सेंटर की तरफ है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ दिस व्हीकल, and this frictional force itself is acting as a centripetal force in this case. तो अभी अगर हम सपोज ये देखते हैं कि कोई भी व्हीकल, अगर यही डायग्राम अगर सपोज फिर से अगर ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ रोड which is like this curved one, and suppose the vehicle is drawn at some distance here. यहाँ पे सपोज ये व्हीकल, उसका क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सपोज ये उसके व्हील्स है और ये व्हीकल है यहाँ पे सपोज, जो कि इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि व्हीकल के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है या फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। चलो ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज Fs, we can denote it by, and at the same time the vehicle experiences of another force which is the centrifugal force, which is along the radius away from the circle due to the circular motion actually. तो सर्कुलर मोशन की वजह से इस व्हीकल के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम Fc से डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सपोज ये Fc जो है, Fc एक्चुअली डिपेंड्स ऑन mv² अपॉन r। तो उसका जो फॉर्मूला ही हमारे पास है, तो वो मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि मास और रेडियस ये दोनों तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जैसे इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे जरूर Fc भी तो इंक्रीज होगा, ये हम समझ सकते हैं। और एट द सेम टाइम दिस Fs भी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन जैसा कि हमने अभी भी देखा कि Fs कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। जैसा कि हमने अभी भी देखा कि Fs का जो है ये इक्वेशन होता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force can never exceed this value μs into mg, where μs is called as the coefficient of static friction of the road. So if we use it here, then we can say clearly that Fs can be maximum when it will be μs into mg.
तो ये जो म्यूएस इंटू एम जी ये फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, जबकि एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। अभी हमारे पास तीन कंडीशंस बचते हैं। एक तो ये कि अगर एफ एस जो है, एफ एस जो है इट इज सो स्मॉल दैट एफ सी इज सॉरी एफ एस इज लार्ज एंड एफ सी इज स्मॉल, तो मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वो सफिशिएंटली स्मॉल है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोटा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स काफी ज्यादा है। तो ऐसे केस में वी आर गोइंग टू बी सेफ, we can say that we are safe, will not skid, the vehicle will not slide, ये vehicle जो है वो skip नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर दूसरा कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि अगर fs जो है वो अगर fc से बड़ा छोटा बनता है, मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो खींचने वाला फोर्स है वो ज्यादा है जबकि फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, तो ऐसे केस में जो रिक्वायर्ड सर्कुलर मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा एंड द व्हीकल विल जस्ट स्किड एंड हेंस वी कैन से दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी सेफ। तो दिस इज द सिचुएशन इन विच द व्हीकल विल स्किड, नो डाउट। बट अगर सपोज हम मैक्सिमम स्पीड से भी जाना चाहते हैं बट विदाउट स्किडिंग, अगर बिना स्किड किए अगर हमको व्हीकल को मैक्सिमम स्पीड से लेके जाना है तो उसके लिए हमारे पास एक ही सिचुएशन बचता है, जबकि fs एंड fc मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उस समय हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन जिसको बैलेंसिंग सिचुएशन भी बोल सकते हैं, कि in which the centrifugal force will be just balanced by the frictional force, and in that case will not skid but will be still moving with maximum speed. So the maximum speed which is with which the vehicle can travel along a road is also called as the maximum safety speed limit, उसको safety speed limit बोलते हैं। और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमको यहाँ पे ये करना होगा कि fc का जो फॉर्मूला है और fs का जो फॉर्मूला है ये दोनों को हमको इक्वेट करना होगा, इन दोनों को हमको इक्वेट करना होगा। तो अगर हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो कि एफ सी का फॉर्मूला है, जिसको हम इक्वेट करना है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, जिसको हमने अभी भी देखा म्यू एस इंटू एम जी वो करता है। तो ये म्यू एस इंटू एम जी ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा एम विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ साइड्स एंड विल बी लेफ्ट विद बी स्क्वायर is equal to mu s into rg, ये mu s into rg ये हमको मिल जाएगा and then we can see this will be equal to v is equal to root of mu s into rg. So this is going to be the formula for safety speed limit for a road which is traveling, for a vehicle which is traveling along the plain curved road, and we can see clearly that this is going to be the formula for safety speed limit, जो कि हमको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे this is the formula for safety speed limit, we can see this is the safety speed limit which is the for the vehicle which is traveling along the plain curved road. चलो ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि किस तरह से सेफ्टी स्पीड लिमिट का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे कि मौत का कुआं, दैट इज